Hi friends, in continuation of chapter number 1 and exercise, this is your second session. अब बाकी के जो न्यूमेरिकल है उसमें 4 या 5 न्यूमेरिकल है, वो चारों न्यूमेरिकल या फिर ऑल द न्यूमेरिकल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीपल स्टेप्स है, बहुत सारे अच्छे से कैलकुलेशन कीजिएगा. डेफिनेटली गोना आस्क इन योर स्कूल एग्जामिनेशन एंड क्लास टेस्ट. सो फर्स्ट 1.29, calculate the molarity of a solution of ethanol in water. So molarity ढूंढनी है किसकी? इथेनॉल इन वाटर. Which mole fraction of ethanol is 0.040. Assume the density of water to be 1. स्टेटमेंट पढ़ते आपको पता चलेगा सर क्या पूछा है, क्या दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है. तो आपको ढूंढना है मोलारिटी और आपको दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल वाटर जो सोल्यूशन है उसका है 0.040. वंस अगेन स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, देन वी स्टार्ट द आंसर. So given mole fraction of ethanol is 0.040. Now what actually means by mole fraction? आपने mole fraction का सेशन अच्छे से अटेंड किया होगा, आपको पता ही होगा mole fraction कैसे फाइंड आउट करते हैं. Mole fraction का फॉर्मूला है x of C2H5, that is mole fraction of ethanol is nothing but number of moles of ethanol divided by total mole. Total mole माने ethanol plus water. तो ये तो हमें पता ही नहीं है, mole fraction दिया हुआ है. दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम ढूंढ सकते हैं. कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज नथिंग बट 1000 डिवाइड बाय 18, दैट इज नथिंग बट 55.55. सो 1000 डिवाइड बाय 18 इज नथिंग बट 55.55 मोल. सो इक्वेशन होगा स्टूडेंट शायद कि सर 1000 कहां से आ गया. यू हैव टू फाइंड आउट द मोलारिटी. टोटल सॉल्यूशन शुड बी 1000. So n of H2O, moles of water is given mass 1000 divided by 18, 55.55. So now this becomes n of H2O. अब आप इसको x assume कर सकते हो. 0.040 ये दिया हुआ है. This becomes your x and denominator बन जाएगा आपका x plus 55.55. Now simple mathematics, this goes to right hand side. ये सामने चला जाएगा. So you get 0.040 into x plus 55.55 is equal to x. ओपन द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर x. x की वैल्यू मिलेगी 2.31. सो दिस बिकम्स योर मोलारिटी. सो दैट इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, दैट इज 2.31. अब वाटर इज 1000 ले ही लिया है हमने, तो डिनोमिनेटर आपका 1 बन जाएगा. सो यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो मिली दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, ये रहा. फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस मोलारिटी. So the molarity is 2.31 divided by 1 is equal to 2.31 mole. So this is all about your numerical. फटाफट एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं क्या किया हमने. You are given a mole fraction that is 0.040. Mole fraction of ethanol is given mole divided by total mole. ये हमें पता नहीं है, assume as x, but water n is equal to 1000 by 18, that is 55.55. So your इक्वेशन बिकम 0.040 is equal to x divided by x plus 55.55. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको x मिलेगा. x is nothing but number of moles of ethanol, and next molarity is nothing but 2.31 divided by 1, that is called as 2.31 molar. Now friends, 3 numerical back to back, important, one of my favorite, जनरल इन स्कूल की एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे. सबसे पहले देखते हैं 1.34 followed by 35 and 36. A welding fuel gas containing carbon and hydrogen only. So गैस किससे बना हुआ है? दो ही चीज का, कार्बन एंड हाइड्रोजन का. Burning a small sample of oxygen gives 3.38 ग्राम of carbon dioxide. So small sample burn करने पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है 3.38 ग्राम and 0.690 ग्राम of water and no other products are formed. A volume of 10 liter measured at STP. STP का मतलब होगा standard temperature and pressure. Means standard condition means 25 degree Celsius temperature, 1 bar pressure. So that is 10 liter of welding fuel gas found to be 11.6 gram. Calculate first empirical formula, second molar mass of gas and third molecular formula. 3 चीज ढूंढनी है, empirical formula, molecular formula and molar mass. स्टेटमेंट अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए, गिवन डेटा क्या है वो एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, देन वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट.
So amount of carbon in 3.38 gram of carbon dioxide. This is just like percentage of carbon, जैसे हम element found out करते थे ऐसा ही है. That is 12 divided by 44. 12 carbon का weight, 44 CO2 का weight, multiply by 3.38. That is given. Simplify करोगे आपको ग्राम मिल जाएगा. Amount of hydrogen in 0.690 gram of H2O. 2 हाइड्रोजन का, 18 वाटर का, एंड मल्टीप्लाई बाय 0.690 यू गेट 0.0767 ग्राम. नाउ योर गैस इज ओनली एंड ओनली मेड अप बाय दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो ये था कार्बन का परसेंटेज, ये था हाइड्रोजन का परसेंटेज. तो इन दोनों को सम कर लीजिए तो आपको टोटल परसेंटेज मिल जाएंगे. ये बन गया आपका टोटल ग्राम. फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स? ग्राम ऑफ कार्बन. सेकंड क्या फाइंड आउट किया? ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. कैसे किया? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास, एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 2 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास. नाउ योर गैस इज ओनली मेड अप बाय दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो दोनों का सम कर लीजिए तो आपको मिल गया टोटल ग्राम. नाउ यहां से हम स्टार्ट करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो परसेंटेज ऑफ सी निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ एच निकालना पड़ेगा. परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू 0.9218. सर ये कहां से आ गया? ऊपर हाइड्रोजन, और ये क्या था? टोटल. सो दिस इज योर हाइड्रोजन का, दिस इज टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए. सो दिस इज गिवन, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100. यू गेट परसेंटेज ऑफ कार्बन कितने हैं? 92.33. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है? कहां से मिला? यहां से. डिवाइड बाय टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100. सो इन गिवन डेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन है 92.32, हाइड्रोजन है 7.68. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का टेबल बना दीजिए. योर सिस्टम इज मेड अप बाय दिस ओनली 2 एलिमेंट्स C and H. गिवन वेट, गिवन परसेंटेज यहाँ पे दिए हुए हैं. एटॉमिक वेट 12 and 1. नाउ कॉलम 2 को 3 से डिवाइड कीजिए, एंड देन फाइनली यू गेट 7.69, 7.68. अब इसमें से जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू उससे डिवाइड कीजिए रफ रेशियो को, एंड फाइनली यू गेट द 1 का मतलब क्या हुआ? योर एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C1H1. मीन्स योर एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH. तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पे, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH. अब सेकंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए. एंड मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन. आपको पूछा गया है कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो वो कैसे ढूंढेंगे? वो ढूंढने के लिए देखिए सेकंड स्टेटमेंट की लाइन दी हुई है, थर्ड लाइन स्टेटमेंट की. अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस बिल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट इज 11.6 ग्राम. तो जो अगर 10 लीटर गैस का मास 11.6 हो रहा है, तो STP पे कोई भी गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर. दैट इज गेलुसेक्स लॉ. एनी गैस एट STP हैविंग वॉल्यूम इज 22.4 लीटर और 22,400 ml. सो 22.4 लीटर पे कितना मास होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा 26 ग्राम. सो ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर वेट. क्यों मॉलिक्यूलर वेट जरूरी है? जस्ट बिकॉज एम्पिरिकल फॉर्मूला का फॉर्मूला ही वही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. सो यहां से आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, दैट इज 26 ग्राम. सो नाउ पुट इट इनटू दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट. En इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. EF क्या था? CH मींस 13N इज इक्वल टू 26, N इज इक्वल टू 2. सो योर एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H2 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 26. जो 3 क्वेश्चन के आंसर आपको पूछे थे वो यहाँ पे मिल गए. न्यूमेरिकल 3 मार्क में पूछते हैं. टेक अ क्विक रिकैप ऑफ दिस न्यूमेरिकल फटाफट. फर्स्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन ढूंढना है. कैसे? 12 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास, यू गेट कार्बन. देन हाइड्रोजन के लिए 2 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय दिस, यू गेट हाइड्रोजन. दोनों का सम कर लीजिए. क्यों? क्योंकि गैस इज मेड अप बाय दिस ओनली दिस 2 कंपोनेंट. Percentage of carbon, percentage of hydrogen, 0.928 divided by this you get percentage of carbon, percentage of hydrogen. Empirical formula के टेबल में डाल दीजिएगा, simplify कीजिएगा, you get 1 and 1. So your EF empirical formula becomes CH. Now molecular weight कैसे ढूंढेंगे? 10 liter of gas is mass is 11.6, that is given. So 22.4 gives how much? Any gas at STP having volume is 22.4 liter, that you have to remember. So you get 26. Final empirical formula gives molecular weight N is equal to 2. Your answer is EF is CH, MF is C2H2 and your molecular weight is 26 gram per mole. Next we move on to this 1.35.
Calcium carbonate react with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2. इक्वेशन दिया हुआ है, क्या पूछा है, लास्ट लाइन समझ लीजिए. व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. 25 ml of 0.75 molar HCl. स्टेटमेंट 2 बार पढ़ लीजिए, then we start the numerical. So this is your statement. CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 CO2 plus H2O. CaCO3 molar mass is 100, 2HCl means 73. Means 73 gram is needed to complete combustion of 100 gram of CaCO3. तो सबसे पहले HCl ग्राम में ढूंढना पड़ेगा. ग्राम में कैसे ढूंढेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट लाइन पढ़िए, फ्यू वर्ड्स. 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl. सो मास ऑफ HCl इन 25 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl मीन्स 1000 ml के अंदर 0.75 मोल HCl होंगे. सो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 36.5 इज इक्वल टू 27.375. इतने ग्राम 1000 ml में, बट मेरे पास तो कितना है, 25. Unitary method. 1000 ml having this many gram of HCl, so 25 means how much? Cross multiply कीजिए, you get your x gram. x ढूंढ लीजिएगा क्या आ रहा है. And last step number 2, जो अगर मेरे पास 73 ग्राम ऑफ HCl हो तो I can combust 100 ग्राम. सर ये कहाँ से आ गया, तो स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस इक्वेशन देखिए. 73 ग्राम चाहिए कंप्लीट कंबशन करने के लिए 100 ग्राम को. सो यहाँ से लिया 73 ग्राम 100 ग्राम of CaCO3, तो x gram gives how much? Once again cross multiplication, you can get your answer y. So first step is really very important, that is mass of HCl. 25 ml 0.75 मोलर, उससे ग्राम मिल जाएगा. देन 1000 ml के अंदर इतना, तो 25 ml में कितना, you get your x, and x के ऊपर से आप फाइंड आउट करेंगे फाइनली y. So last question, that is 1.36. Chlorine is prepared in chemistry laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to this equation. The blah 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 blah. Fine. Last question क्या पूछा हुआ है, how many grams of HCl react with 5 gram of manganese dioxide. Once again equation अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और नीचे स्टेटमेंट डिस्कशन करते हैं. So this is your statement. 4HCl plus MnO2 gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Now 4 mole of HCl is nothing but 4 into 36.5, that is 146. MnA2 का molar mass है 87. So to complete combustion of 87 gram of MnO2, I require 146 gram. Then 5 gram gives how much? Simple cross multiplication, unitary method, you get your answer, that is your x. Very easy. स्टेटमेंट जितना बड़ा है उससे छोटा उसका आंसर है. फिर से एक बार देख लीजिए, 4HCl MnO2 मीन्स 4 into 36.5 146 ग्राम. MnO2 का मोलर मास 87. सो 87 ग्राम ऑफ MnO2 हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 146 ग्राम चाहिए. तो 5 ग्राम को कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यू गेट योर आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंड एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1. रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आप लोग आराम से खुद से कर सकते हो. देन आफ्टर इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, देन पोस्ट द डिफिकल्टीज. विल डिस्कस दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर एंड एक्सरसाइज. सो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से 2 बार प्रैक्टिस करके लिख लीजिएगा. नेक्स्ट सेशन में और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं. थैंक यू.